I'll check again and told you. Registration में mentioned है कि negative marking है. So yes, Aisha ma'am, it's over to you. Okay, ma'am. Audio and video is clear? Yes, ma'am, it's clear. Okay, so this is the practice sheet for linked list, and we will begin with the first question. Let's see how many of you solved it and what answers were you getting for this. What did you mark? Like, what was your answer? Students are responding A. Yes, of course. So this was one of the easiest question that was asked in the linked list topic. इसमें आपको बोला गया है head is the reference to the first node of a singly linked list. The complexity of printing the kth element from the middle element. That means first you have to reach to the middle. To reach to the middle itself, you will require big O of n. And after reaching to the middle, you have to traverse k times. So उसका order of k. So if there was an option of order of n plus k along with this option, and this option, then the answer would be order of n plus k. But since k will be a constant term, तो उसको आप इग्नोर करके ऑर्डर ऑफ n भी कह सकते हो और यहाँ पर n plus k ऑप्शन नहीं था. So that means your correct answer is option A. So I hope this one was very clear and very simple question. But to understand this fact, कि मिडिल तक जाने में आपको ऑर्डर ऑफ एन लगेगा एंड उसके बाद के लगेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? Please write a quick yes in the chat box if this question is clear to all of you. Yes, ma'am, it's clear. We can proceed. ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था. इसका आंसर आपने क्या मार्क किया? Before flash the question, students are start replying. That's very good. The answer is B. Okay, so basically linked list के questions में you will be having a code, right? You might be having written like this कि ये singly linked list पे आपको काम करवाना है. हो सकता है कि आपको सिर्फ ये दिया गया हो what does the code do, and you don't know whether it is using a array, it is using a linked list or whatever. The main point is कि आपको कुछ इस टाइप की चीजें दिखेंगी, डॉट नेक्स्ट, डॉट की, तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये आपका लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है. यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है सिंपल से मेंशन कर दिया गया है तो हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट ही लेना है, राइट? द सेकंड थिंग इज whenever a code is given, right, you take an example of a linked list. Take a small example. Let's say I have taken this 10, 20, 30 and 40, right, and this is my head. अब इसको मैं पूरे कोड को इसी लिंक लिस्ट पे चला के देखने वाली हूँ. So what am I going to do is the first statement current node 1 is equal to head. So let's say current node 1 है तो मैंने इसको मान लिया है C1, ठीक है? While current node 1 is not equals to none. C1 none नहीं होना चाहिए और C1 के next में भी none नहीं होना चाहिए. That means if C1 is going to get incremented, it will go till the last of this linked list, right? इसके बाद हमने क्या बोला? So the first time loop executes, ना तो C1 none है और ना ही उसके next में none है. अब इसके बाद क्या हो रहा है? एक दूसरा वेरिएबल लिया गया है current node 2 which is equal to current node 1 का next. So let's say this is C2. So you have one C1 and the second is C2. अब अगर आप ध्यान से देखो what is happening over here? In these three statements, they are swapping the keys. तो आपको स्वैपिंग का कोड इतनी कोडिंग या क्वेश्चंस देखने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाता है. यू टेक अ टेम्पररी वेरिएबल एंड यू स्वैप इट. पाइथन में अनदर वे टू स्वैप इज a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a. अगर इस टाइप की कोई चीज लिखी हुई है तो भी स्वैपिंग हो रहा है, अगर ये टाइप का ट्रेडिशनल कोड लिखा है तो भी स्वैपिंग हो रही है, राइट? सो सिंस हियर दिस इज स्वैपिंग इज गोइंग ऑन, सो वी नो दैट 20 will come over here and 10 will come over here. ये कैसे हुआ? टेम्प में आपने C1 की वैल्यू डाली which was 10, देन C1 के की में C2 की वैल्यू डाली which is 20 and C2 के की में डाल दिया वापस से 10. So this swapping I hope is clear to everyone because it is a very easy concept. तो ये होने के बाद क्या हुआ? ये होने के बाद लास्ट स्टेटमेंट चला current node 1 is equal to current node 2 का next. अब मैं emphasize क्यों कर रही हूँ इस पे? While solving MCQs what happens is कि आप ये देखना भूल जाओगे कि यहाँ पे current 2 node 2 dot next लिखा है.
बिकॉज इट वॉज अ प्रैक्टिस शीट, बिकॉज यू हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपको ये चीज दिख गई. बट वेन देर इज अ टाइमर, वेन देर इज अ एग्जाम, तो यूजुअली प्रॉब्लम यही होती है कि आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हो. सो करंट नोड 1 इज इक्वल टू C2 का नेक्स्ट. दिस यू हैव टू टेक केयर. तो C1 विल कम ओवर हियर C2 के नेक्स्ट में, और यूजुअली आप क्या कर दोगे, यहां पर C1 लगा दोगे, विच इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सो अगेन व्हाट विल हैपन, द लूप विल एग्जीक्यूट. लूप कंडीशन चेक होगी, क्या C1 नन है, नहीं, एक नोड को रेफर कर रहा है, इसके नेक्स्ट में भी नन नहीं है. तो अगेन क्या होगा, C2 को आप इनिशियलाइज करोगे C1 के नेक्स्ट में, तो C2 यहां से हटके आ जाएगा यहां पर. अगेन देयर इज गोइंग टू बी स्वैपिंग, सो 40 विल कम ओवर हियर एंड 30 विल कम ओवर हियर, राइट. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगेन देयर विल बी एन इंक्रीमेंटेशन. इंक्रीमेंट क्या होगा, C1 इज इक्वल टू C2 का नेक्स्ट. इसके नेक्स्ट में यहां पर क्या होगा, दिस नोड विल हैव नन, बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड, तो इसमें नन होगा यहाँ पर लास्ट में. जो C में आप नल लिखते थे, दिस विल बी नन इन पाइथन, राइट. सो C1 इंक्रीमेंट होगा एंड इट विल बी इक्वल टू C2 का नेक्स्ट, विच इज इक्वल टू नन. सो नाउ C1 विल बी इक्वल टू नन. जैसे ये C1 इक्वल हुआ नन के, आपका व्हाइल लूप में कंडीशन ये हो गई फॉल्स. पहली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये एंड ऑपरेटर है, सेकंड वाली चेक ही नहीं करेगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप. सो व्हाट हैपेंड वाज इट स्वैप्ड द कीज ऑफ द एडजेसेंट नोड्स. द कोड वाज सिंपल, द क्वेश्चन वाज सिंपल, बट द पॉइंट इज व्हेन देयर इज अ टाइमर यू हैव टू टेक केयर कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हो एंड यू अंडरस्टैंड कि कहाँ 1 लिखा है, कहाँ 2 लिखा है, एंड द इंक्रीमेंट एंड द कंडीशंस आर चेक्ड प्रॉपर्ली, right? So if this is clear, we can proceed to the next one. Quickly write yes or no, it is clear to all of you. Yes, ma'am. Students are saying yes. You can proceed to the next question. Okay, so tell me the answer for this one. Okay, so some students are saying D is the answer. Most of the students are saying D is the answer. Okay, so in this kind of question, what happens is linked list के question में usually आपको length ज्यादा दिखेगी question की, कि ये काफी बड़ा question है, and somewhere if randomly अगर आप किसी exam में इसको देखोगे and you just see this part which I'm going to highlight, if you see this part, आपको क्या लगेगा, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ गया है, सो लेट्स जस्ट स्किप इट. ओके, बट देन व्हाट हैपेंस इन एग्जाम्स इज कि कुछ चीजें जेन्युइनली रखी जाती हैं, कुछ चीजें जान के रखी जाती हैं फॉर कंफ्यूजन. सो हियर व्हाट दे आर सेइंग इज यू हैव अ डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. सो इट इज नॉट सिंगली, इट इज डबली सर्कुलर, राइट. इसमें ये नोड्स हैं, उन नोड्स में की वैल्यूज आपको गिवन है. व्हाट विल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट इफ OPR refers to the head and QCR refers to the last node of the linked list. So traditional way of solving is that you draw a linked list, right? So I'm going to do that first and I'm going to draw this very quickly. And this is having all the nodes. But what happens is I'll tell you after drawing कि ये जो अभी मैं draw कर रही हूँ, on an average it takes 1 minute to solve a question in an exam, right? Because it is doubly circular, so I'm going to connect it backwards also. Right. So on an average, what happens in exams is कि आपको 1 minute दिया जाता है. Now within that 1 minute, for a linked list question, you have to draw this, then you have to execute this entire code, right? Now that will take more than 1 minute. Usually try to not make the diagram if it is a simple question like this and keys आपको order में दी हुई है तब, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यहीं पर ही आप OPR मार्क कर लो because it is pointing to the first node, और लास्ट में आप यहीं पर मार्क कर लो QCR, right? And you try to solve it in this only and only if you have practice. If you don't have practice, don't do this, make a diagram and then solve it. But if you have practice and you can do it properly, तो आप उतने में ही solve करो. Now what happens in this is, पहला हम जब statement execute करते हैं, OPR dot next dot next dot next dot next dot key. Now इसमें कितने next लगे हुए हैं आपको बस इतना count करना होता है. अगर मेरा OPR first node को refer कर रहा है और मेरे पास 4 नेक्स्ट लगे हुए हैं, दैट मीन्स 4 इंक्रीमेंट तो मुझे करने ही करने हैं. फर्स्ट इंक्रीमेंट करके हम यहाँ आए, सेकेंड इंक्रीमेंट यहाँ, थर्ड इंक्रीमेंट यहाँ और चौथे इंक्रीमेंट में यहाँ आ गए.
और चौथे इंक्रीमेंट के साथ ही मुझे क्या चाहिए, डॉट की, इस चौथे इंक्रीमेंट वाले की। तो मेरा फर्स्ट आउटपुट क्या हो गया, MUL, राइट। इससे क्या हो गया, ऑप्शन बी तो रूल आउट ही हो गया, ये होने नहीं वाला। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, OPR डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस, दैट मीन्स बैकवर्ड जाना है, 3 बार जाना है, बिकॉज यू हैव 3 previous over here. So I'm going to go 3 times backward. तो पहली बार जब मैं OPR से पीछे जाऊंगी, so I will come over here. Second time I will come over here and third time I will come over here. इसका क्या चाहिए मुझे, की वैल्यू चाहिए. So the key value is div. So the second one is div. That means option C is also not correct. थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, QCR पे करना है. अभी QCR किधर था, QCR was at the last node of the linked list. लास्ट नोड हमारी कौन सी थी, लास्ट नोड थी हमारी SUB. So your QCR was this. QCR dot next dot next dot next. That means 3 बार आपको next करना है, 3 बार next करना है. So first time you come over here, second time over here and third time over here. इसका क्या चाहिए, की वैल्यू. तो आपने बोल दिया INCR. So you have INCR. Now with this you rule out A option also and the correct option is D. आपको ये आगे का इतना कोड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट. सो इन MCQs फर्स्ट थिंग, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, यू कैन स्किप मेकिंग द डायग्राम इफ द कीज आर गिवन इन ऑर्डर. सेकेंड, अगर आपको एक लंबा कोड दिया गया है, सो ऐसा हो सकता है कि आधे या आधे से कम कोड में भी आपका आंसर आ जाए, बिकॉज यू विल रूल आउट द पॉसिबिलिटीज और एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस, राइट. सो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन. Quickly write yes or no. Students, write yes or no. Yes, ma'am, it's clear. Okay. So the next one, can I know the answers? Yes, students start reply. Only 2 students replied yet. They said C is the answer. Rest of the students, please reply fast. Okay, few of us saying A, D. Okay. So confusion between A, D and C. There are right now there are 120 students in the class and I was expecting कि सब लोग reply करें. मुझे बहुत ही कम रिप्लाई मिले हैं अभी तक, वो भी मिक्स्ड रिप्लाई मिले हैं, तो प्लीज फटाफट से आप लोग अपना आंसर दीजिए. तो majority is saying A, few are saying C and few are saying D as well. Let's see the solution, ma'am. Okay, so the confusion is very obvious because first of all ये linked list का question है and second of all they have used recursion. So जहाँ recursion आता है confusion आता है, but this is one of the very easy recursive questions in a linked list. Now to solve a recursive question and that too in a linked list, you need to go stepwise. First of all, let's just see what this question is saying. What does the code do for a singly linked list of n nodes? तो जाहिर सी बात है, I cannot make n nodes, so I will make 3 or 4 nodes, right? Then there is a function. एक लाइन ये है, एक लाइन if के साथ है, फिर else में आते हैं. So else is having, let's say this is the third line and this is the fourth line. So usually when I solve or whenever we solve recursive questions, we tend to number them. That makes it easier for us to understand while solving. So you also can number the statements. Second thing, what are they trying to do? They have only the head of a linked list. So let's take a linked list, very easy one. Again 10, 20 and I'll say 30 and 40 bus, and this will have none in the next part, right? I'm not making every node ka next part because that is very obvious and you understand what is it having, right? Every node is having the reference to the next node in the next part. Okay, so now what is going to happen is the first time when we call this function, first time the head is passed in the function. अब क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं तो हेड को हम पास कर रहे हैं, दैट मीन्स इस नोड को रेफर करा जा रहा होगा जिसमें की वैल्यू है 10. तो बस डिनोटेशन के लिए आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर कोई f फंक्शन है और उसमें ये 10 वाला नोड पास किया जा रहा है, राइट? इसके अंदर पहला स्टेटमेंट करंट नोड इज इक्वल टू हेड. तो मैंने बोला कोई करंट नोड जिसको मैंने C मान लिया, ये हेड नोड के बराबर है, दैट मीन्स हेड नोड के बराबर है, तो ये 10 वाली नोड को रेफर कर रहा है.
सी के अंदर वैल्यू 10 नहीं है, बट सॉल्व करने के लिए मैं उसको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख रही हूँ. अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सी के अंदर इस नोड का रेफरेंस है, राइट? ये नोड जहां पर भी स्टोर्ड होगी, कोई एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस होगा यहाँ पर, बट आई एम गोइंग टू राइट इट कि ये रेफर कर रही है इस 10 वाली नोड को. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, क्या जो करंट नोड है वो नन है या उसके नेक्स्ट में नन है? नहीं, ऐसा नहीं है. सो इफ इज फॉल्स. कम टू द थर्ड एंड द फोर्थ. थर्ड में क्या बोल रहा है ये? function 1 current node dot next. So this is a minor mistake over here. This is going to be func current node dot next, right? So might be possibility कि आपने ये देख के गलत option निकाला हो, but this is a recursive code which is calling the next value, right? So next में क्या है? Next में है 20. So from here there goes another call which is going to call for the 20 node. Similarly, इधर पे भी एक C बनेगा first statement which is going to refer to the node having 20. Second statement, क्या ये current node none है या इसके next में none है? नहीं, ऐसा नहीं है. Third statement, again एक function call करो इसके next के लिए. इसके next में कौन है? 30 वाला node. So the 30 वाला node gets passed over here. First statement, current node is equal to head. Currently head में क्या है? The node having 30. So it is going to refer to 30. Second statement, क्या ये none है या इसके next में none है? नहीं, ऐसा नहीं है. So third call. Again you are calling function for the next node which is 40. Again the first statement, C, that is your current node, will refer to the node having 40 because अभी currently head में हमारा 40 है. Second, if statement, current node is equal to none, false, या करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन. अब इसके नेक्स्ट में यहाँ नन है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से हमें क्या करना है? हम इफ के अंदर गए एंड यू विल रिटर्न. सो फ्रॉम हियर वी रिटर्न टू द प्रीवियस कॉल. प्रीवियस कॉल में आके हम इस स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट कर चुके थे. अभी ये फोर्थ स्टेटमेंट बकाया था, राइट? तो जब ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ बकाया था, उस फोर्थ स्टेटमेंट को क्या करना था? प्रिंट करना था करंट नोड डॉट की को. अब जब इस कॉल में आप आए हो तो इधर करंट नोड क्या है? इधर करंट नोड है ये 30 वाला, तो उसकी की वैल्यू क्या होगी? 30. तो सबसे पहले आउटपुट में आपके आ गया 30. यहां से काम खत्म हुआ, आप पेरेंट कॉल में पहुंचे. यहां पर पहुंचने के बाद एक फोर्थ स्टेटमेंट बकाया था, उसको क्या करना था? प्रिंट करंट नोड डॉट की. यहाँ करंट नोड की वैल्यू क्या है? 20. तो इसके बाद क्या प्रिंट होगा आपका? 20. उसके बाद आप वापस से प्रीवियस कॉल में गए, यहां पर भी एक फोर्थ स्टेटमेंट बकाया था, उसमें भी आपको करंट नोड डॉट की प्रिंट करना था, विच वाज करंट नोड क्या था? आपका करंट नोड था आपका 10. तो अब हमारा क्या प्रिंट हो गया? 10. सो द फर्स्ट टाइम आउटपुट आपका क्या आएगा? 30 प्रिंट होगा, फिर 20 और फिर 10. ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है और लास्ट नोड प्रिंट नहीं हो रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Print the linked list in reverse order except the last node, right? If this is clear to everyone, we can proceed. Quickly write yes or clear. Yes, ma'am, it's clear. You can proceed. Okay. So this is the next one. Tell me the answer. Okay, so Janvi says C and rest of the student are saying B. बाकी सारे बच्चे भी प्लीज फटाफट से रिप्लाई कीजिए. अगर आपने सॉल्व की हुई है शीट तो आपको पता होगा. इट्स टेक अ सेकंड टू राइट द आंसर. ओके मैम, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग बी इज द आंसर. Okay. So this is again a very easy question. The only thing is जो वो पूछना चाह रहे हैं, they have asked in a code. They could have also asked in 2 lines. But the point of MCQs is only to confuse and to test your basic concepts. So given a linked list having these keys, again I'm going to tell you, because the keys are given and they are in order, you need not make the diagram, but if you are not sure of yourself, please go ahead and make that diagram, right? So a function is given, head is pointing to the first node. So I'm going to make this diagram not because I'm not sure, but because everybody in the class should understand. 26 and 28, right? And this is going to have none. So I usually tend to write none over here so that you can easily understand कि last node कहाँ है और आपको कहाँ stop करना है, right?
So what will be the output of the following function if func head comma 26 is passed? Now this data value here is 26. So if you glance this function for the first time, what can you see is एक तो if condition है which is never going to execute because head double equals to none तो नहीं है. Your head is having this entire linked list. So this is not happening. Now P is equal to head. So P is equal to head. I will have P over here. Then there is a loop. There is no recursion, nothing of that sort. So only we have to go this way. So there is a loop. और ये लूप कब तक चलेगा जब तक P के नेक्स्ट में नन नहीं हो जाता. P के नेक्स्ट में नन नहीं हो जाता तो probably it's going to work till here. Whenever P will come over here, लूप खत्म हो जाएगा. राइट, वो बात की बात है. अभी देखते हैं क्या करना है. So P के नेक्स्ट में नन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल जाके हमें कंपेयर करना है डेटा. किससे? P डॉट की से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 26 कंपेयर होगा 11 से. मैच किया? नहीं किया. जब नहीं कर रहा है आपका डेटा मैच, so simply you have to increment P, right? So the data will not match over here. P will come over here. Again 12 will be compared to 26. It will not match. So again you will move forward. 25 will be compared to 26. It will not match. Again you will move forward. Now 26 will match 26. As soon as that happens, what is happening? एक तो print हो रहा है और एक break हो रहा है. तो print क्या कर रहा है? ये P को print कर रहा है. जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया. Right now, if you print P, P is holding what? The address or the reference of the node. Right? If you print P dot key, तो आपको मिलेगा क्या? 26. अगर आप P dot next को प्रिंट करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा? एड्रेस. बट वो एड्रेस किसका होगा? इस 28 वाली नोड का एड्रेस मिलेगा. So whenever I'm writing P, you need to understand that you are printing the address of the node 26. So option B is the correct answer. अगर यहाँ मैंने simply लिख दिया होता print P dot key, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता. अगर मैंने लिख दिया होता P डॉट नेक्स्ट को प्रिंट करो तो ऑप्शन सी सही होता. और अगर मैंने लिख दिया होता P डॉट नेक्स्ट डॉट की तो ऑप्शन डी सही होता. राइट. सो दिस वाज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंटर या एक रेफरेंस जो आप ले रहे हो वो क्या रेफर कर रहा होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो quickly write yes or clear. Yes, ma'am. It's clear. We can proceed to the next question. Okay. So let me know the answer for this one. Okay, so the student are saying D is the answer. Okay. So this question is having 3 codes, not just one, it is having 3 codes. Which of the following code successfully traverses through a circular linked list? So you have a circular linked list and you have to traverse that list, assuming that PTR is equal to head, right? So we'll try to execute all the 3 codes. First, we need to make a circular linked list. So I'm going to make a simple one. Let's just say we have 4 nodes, or you may also take 3 if you want. That's going to be enough. But this is my circular linked list. This is my head of the circular linked list. Circular linked list में last node के पास reference होता है first node का. So we have this link denoting that. अब PTR बोला गया है head के बराबर है. So my PTR is over here. First code. जब तक PTR के next में head नहीं आ जाता, while PTR dot next, that means इसके next में head का reference नहीं आ जाता. 10 के नेक्स्ट में 20 का रेफरेंस है, 20 के नेक्स्ट में 30 का रेफरेंस है, 30 के नेक्स्ट में 40 का रेफरेंस है और 40 के नेक्स्ट में हेड का रेफरेंस है. सो दैट मींस यू हैव द लूप एग्जीक्यूटिंग टिल 40. सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द लूप? एक तो की प्रिंट हो रही है और आप पीटीआर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हो. तो सबसे पहले जब पीटीआर 10 पर है आपका 10 प्रिंट हो जाएगा एंड दिस पीटीआर विल कम ओवर हियर. उसके बाद 20 प्रिंट हो जाएगा एंड दिस पीटीआर विल कम ओवर here. उसके बाद 30 प्रिंट हो जाएगा and PTR will come over here, increment by PTR is equal to PTR dot next. यहाँ आते ही while condition PTR dot next not equal to head क्या हो जाएगी? false, क्योंकि इसके next में head का reference है. यहाँ से आप loop के बाहर आ जाओगे. When you come out of the loop there is this line print PTR dot key. PTR is still pointing to 40, so you will have 40 as your output. तो इससे तो पूरा आपका ट्रैवर्स हो रहा है, right? So
the possibility of option B is wrong. Option A, C and D is correct. Now I'll tell you one thing. अभी मैंने कोड स्निपेट 1 को सॉल्व किया, राइट? बट अगर आप ध्यान से देखो, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, यू विल हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. इनके ऑप्शंस में जो फर्स्ट कोड स्निपेट है वो 3 जगह आ रहा है. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट स्निपेट बीइंग करेक्ट इज मोर. तो अगर आप एमसीक्यू किसी टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना कि 111 3 जगह आ रहा है, तो इसको मैं अभी सॉल्व ना करूं, राइट? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व ना करके ये दोनों कोड चला के देख लेते हो, राइट, सो यू विल हैव अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर क्वाइट क्विकली, राइट? सो 1 तो करेक्ट हो ही सकता है, दैट कैन बी चेक्ड एट द एंड. ये स्मॉल कोड है, छोटा कोड है, इसलिए इट्स easy to run it, but you might have a different type of code over here, right? So यहाँ पर the first code is correct. Let's go to the second one. The second one is saying that print ptr dot key. सबसे पहले ptr यहाँ है, उसको प्रिंट ही कर दो. तो यहाँ पर हमने 10 प्रिंट कर दिया. फिर कहा गया कि उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो ptr आपका यहाँ आ गया इंक्रीमेंट होके. अब एक लूप चल रहा है और ये लूप भी सेम कंडीशन लगा रहा है. थोड़ा सा डिफरेंस है कि पीटीआर हेड के बराबर ना हो जाए. दैट मीन्स जब भी पीटीआर जहां भी आपका पॉइंट कर रहा होगा, आप उसकी की को प्रिंट करो, उसे इंक्रीमेंट करो. तो अभी फिलहाल ये हेड नहीं है 20, तो इसको मैंने प्रिंट कर दिया और पीटीआर को इंक्रीमेंट कर दिया. अभी 30 भी हेड नहीं है, तो इसकी की को मैंने प्रिंट कर दिया और पीटीआर को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया. 40 भी की नहीं है, तो इसका भी की मैंने प्रिंट कर दिया और इसको इंक्रीमेंट करके इसके नेक्स्ट में हम कहाँ आ गए, वापस से यहाँ पर. बट अब पीटीआर नॉट इक्वल टू हेड फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब पीटीआर हेड के बराबर आ गया है, तो आप लूप के बाहर हो जाओगे. इन दिस केस ऑल्सो योर कोड स्निपेट 2 इज वर्किंग करेक्टली. नाउ लेट्स मूव टू द कोड स्निपेट 3. स्निपेट 3 क्या बोल रहा है कि आपके पास पीटीआर है जो हेड के बराबर है, एंड यू हैव अ लूप व्हिच इज गोइंग टू रन इनफाइनाइट टाइम्स. वाइल ट्रू का मतलब होता है इनफाइनाइटली ये चलने वाला है. इसके अंदर कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जो इसको ब्रेक करे. तो जब तक ये लूप चल रहा है, आप की को प्रिंट करो, पीटीआर को इंक्रीमेंट करो. ओके, सो वी विल प्रिंट 10 एंड वी विल इंक्रीमेंट पीटीआर टू 20. अगेन ये करने के बाद आपको एक कंडीशन चेक करनी है, क्या पीटीआर हेड के बराबर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ. सो यू अगेन print the value, increment ptr, ptr will go over here, and then again check क्या अब ptr head के बराबर हो गया? नहीं हुआ. So again you go inside the loop, print 30 and again increment ptr to 40. Again if ptr double equals to head, it is false. So again you are going to print 40, increment ptr over here. As soon as ptr comes over here, what will happen is if condition will be true, ptr बराबर head के हो गया, तो यहां से आप क्या कर दोगे? ब्रेक कर दोगे. So all the 3 codes are correct for traversing a circular linked list. So option D is your correct answer. This one is clear? So quickly write yes in the chat box if it is clear, and in case of any doubt, you can write your doubt in the chat box as well. Okay, so ma'am, students are saying yes, it's clear. Okay. Now this one, what is the answer for this one? Quickly tell me the answer. Okay, so most of the students are saying B. Okay, students we'll try quickly to reply, right? A, B, C or D? Yes ma'am, B. Students are saying B. You can proceed with the solution. Okay, so what does the following code do for a singly linked list having the following keys? So we'll just draw this linked list. So we have 1, 2, 3, 4 and 5, and 5 will have none. So this is your head. Okay, so this is a function and head has been passed inside. एक current हमने लिया हुआ है which is head के बराबर. So you will have a current over here. Okay, then you will have temp1, temp2, P and Q. Everyone is none over here. So we are not going to make it right now. And let's just say current ko bhi I am denoting with C. Okay. So while current not equals to none. So this is going to work probably till the end of the linked list. Even iske aage jab chala jayega, tab ye loop ke bahar aayega. Right. So this I have understood.
अब करंट डॉट की को मॉड्यूलो करना है 1 से। इस इफ का ये बॉडी है, ये एल्स का बॉडी है, एंड यू हैव दिस लास्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट एज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द व्हाइल लूप। ठीक है, तो अगर आपका ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो आप ये एग्जीक्यूट करोगे एंड यू विल इंक्रीमेंट। अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो आप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करोगे एंड यू विल इंक्रीमेंट CURR। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, करंट की का आप मॉड निकालो। तो जब आप मॉड करते हो 2 से तो रिमाइंडर आता है, अगर आप 1 का मॉड करोगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो जब भी ऑड वैल्यू होगी तो रिमाइंडर आएगा 1, इवन वैल्यू होगी तो रिमाइंडर आएगा 0। So whenever you have a odd value, you will come into the if, and whenever you have a even value, you will come into the else part. Right now, I have an odd value. तो odd value है मेरे पास, क्या बोला गया उसके अंदर भी, if P is none. Right now, P, Q सब लोग none है, तो P none है मेरा। तो यहाँ पर कहा गया P is equal to current. So we'll draw P over here. And temp1 is also equal to current. So okay, we have temp1 as T1. राइट अब क्योंकि इस पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो इसका एल्स तो होगा नहीं, डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे इस वाले स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट पे आके हमें क्या करना है, करंट को बस इंक्रीमेंट कर देना है। सो व्हाट विल हैपन, करंट विल बी इंक्रीमेंटेड टू हियर। In order to clear the screen, I'm going to remove this from here. So this is the condition now. Now what is going to happen? Again loop चलेगा। अब हमारे पास क्या है, इवन वैल्यू है, तो अब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ Q इज नन, Q अभी नन ही है क्योंकि Q किसी को रेफर नहीं कर रहा है, सो यू विल से Q इज इक्वल टू करंट एंड temp2 इज इक्वल टू करंट। तो हमारे पास क्या हुआ, दिस इज Q and this is temp2. After that, again increment CURR. So again what will happen, my C will come over here and from here I will remove it. ये भी इंक्रीमेंट हो गया। फिर से ऑड वैल्यू आई, अब ऑड वैल्यू आई, आप फिर से इस वाले कोड में गए, क्या P नन है, नहीं, अब P नन नहीं है, अब आपको ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज वेयर यू आर, P डॉट नेक्स्ट में करंट को डाल दो। अब P डॉट नेक्स्ट मतलब क्या है, ये वाली नोड का नेक्स्ट में क्या है, अभी 2 है, तो इसे हटाओ और इसके नेक्स्ट में इसको डाल दो, डाल दिया, एंड P इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट। सो यू हैव टू इंक्रीमेंट दिस P। अब इसके नेक्स्ट में क्या है 3, तो P आ गया आपका यहां पर। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर। इसके बाद नेक्स्ट पे चले, ये करने के बाद हमारा करंट इंक्रीमेंट हुआ एंड करंट इंक्रीमेंट होके आ गया यहां पर। सो दिस इज योर करंट। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन द वैल्यू इज इवन, इवन वैल्यू के लिए हम एल्स पार्ट में आएंगे। Q इज नन, फॉल्स है, तो ये वाला पार्ट चलेगा। Q के नेक्स्ट में CURR आपको डालना है। नाउ Q का नेक्स्ट कहाँ है, Q इज दिस, इसके नेक्स्ट में अभी 3 है, तो ये लिंक हटा दो, जो लिंक हट रही है मैं उसको डिलीट कर रही हूँ, ये लिंक भी हटा दो और इसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, इसको डाल दो, Q के नेक्स्ट में डाल दिया आपने CURR। ये करने के बाद Q इज इक्वल टू Q डॉट नेक्स्ट। सो फ्रॉम हियर Q विल कम ओवर हियर। सो आई एम रिमूविंग Q फ्रॉम हियर। इसके बाद क्या हुआ, अगेन लूप चला, योर C वॉज इंक्रीमेंटेड एंड C केम ओवर हियर। अब वैल्यू ऑड है, P नन नहीं है, तो ये फिर से इसी एल्स पार्ट में जाएगा। P के नेक्स्ट में CURR डाल दो। There is a doubt that can you repeat the last iteration again when current was 3? Okay, current was 3. Fine. So I'll just go back to that point of time when the current was 3. This was Q and this was P. And initially what was happening, ये आपका status था. So please see it carefully because इसमें links काफी change हो रहे हैं. So I hope this is the state, right? यहाँ तक clear था, I guess? Yes, ma'am. Okay. So when your current is at 3, again, just understand कि ये value odd है. तो current dot key mod 2 1 आएगा. ठीक है, हम इस पार्ट में गए. इसके अंदर पहले if में लगा हुआ है if P is none. अभी P में 1 का रेफरेंस है, तो ये none तो नहीं है, तो इसके कहाँ आ गए आप, इस else पार्ट पे आ गए, this part.
you have to execute this part, right? इसमें क्या लिखा हुआ है, p dot next is equal to current. अब p कहाँ है, p है 1 पे, p के नेक्स्ट में क्या है, p के नेक्स्ट में है 2, राइट, इट इज रेफरिंग टू 2. तो इन्होंने कहा है p के नेक्स्ट में अब आप c को डाल दीजिए. सो यू विल मेक अ रेफरेंस to this one, and when you make a reference to this one, this reference is deleted. एक्चुअली क्या होगा, 1 के नोड में 2 का एड्रेस होगा, लेट्स से 2 कोई 2000 पोजीशन पे है तो 2000 होगा. इनका एड्रेस भी दे दो, अगर 1 नोड 1000 पे, लेट्स से 2000 एंड 3000, तो 1 नोड कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा. अभी मैंने 2000 की जगह यहाँ 3000 लिख दिया, तो ये 1 नोड जो है इसको रेफर करने लग गया और ये लिंक आपका खत्म हो गया. तो ये लिंक खत्म हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से हमने हटा दिया. नाउ व्हाट विल हैपन इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट. p है 1, अब p के नेक्स्ट में है 3, तो अब अगर मैं लिखूंगी p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, तो मेरा p कहां चला जाएगा, मेरा p चला जाएगा 3 पर, यहां से हटके. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am, clear. Okay, so I'm going to remove this from here. So this happened. Okay, अब मैंने क्या बोला, इतना करने के बाद अब क्योंकि हम इस if के अंदर गए हुए थे तो हम else में तो नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली ये इंक्रीमेंट वाली लाइन पे जाएंगे. ये इंक्रीमेंट वाली लाइन क्या बोल रही है, c इज इक्वल टू c का नेक्स्ट. तो आपने ये c यहां से हटाया और आपका c आ गया यहां पर. आई एम ऑल्सो रिमूविंग दीज एड्रेसेस so that you understand very clearly. Now the condition is this. अब इस केस में क्या है, वैल्यू आपकी इवन है. जब वैल्यू इवन है तो आप कहां जाते हो, इस एल्स पार्ट में. इस एल्स पार्ट में जब आप जाओगे तो ये चेक करेगा क्या क्यू में नन है, क्यू में नन नहीं है, क्यू इज होल्डिंग द रेफरेंस टू दिस नोड. तो आप एल्स पार्ट में आए, सो ओनली दिस पार्ट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, विच इज सेइंग कि क्यू के नेक्स्ट में आप करंट की वैल्यू डाल दो. क्यू के नेक्स्ट, क्यू कहाँ है, क्यू यहां है, क्यू के नेक्स्ट में क्या है 3, बट अब आप चाह रहे हो कि क्यू का नेक्स्ट कहां रेफर करने लग जाए, करंट पे रेफर करने लग जाए, तो हम करा देंगे. बट जब आप ये कराओगे तो ये लिंक आपकी यहां से टूट जाएगी. इट विल नॉट रेफर टू 3 एनी मोर एंड इट विल गो एंड रेफर टू 4. जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट नेक्स्ट. तो क्यू था हमारा 2, इसके नेक्स्ट में है 4, तो क्यू कहां चला गया हमारा इंक्रीमेंट होके 4 पे. यहां तक क्लियर है सबको? Quickly write yes or clear. Yes, ma'am, clear है. ठीक है, इतना हो गया. अब फिर से करंट इंक्रीमेंट हुआ, तो करंट कहां चला गया हमारा, लास्ट पे आ गया. दिस इज योर करंट और यहां से हम आ गए यहां पर. अब सिचुएशन ऐसी है, ये लास्ट आइटरेशन है. यहां पर क्या बोला गया, अब वैल्यू क्या है आपकी, ऑड है. अगेन आप ऑड वैल्यू के लिए पहले वाले इफ में जाओगे, ये चेक होगा कि आप p नन है, p नन नहीं है, आप फिर से एल्स पार्ट में आओगे क्योंकि p के पास अभी 3 की वैल्यू है. अब ये बोल रहा है p के नेक्स्ट में करंट को डाल दो आप. p कहाँ है आपका, p इज ओवर हियर. p के नेक्स्ट में कौन है 4, लेकिन अब p के नेक्स्ट में आप डाल दीजिए इस करंट को. ये मैंने डाला, ये डालते साथ ही ये लिंक टूट गई, ये लिंक टूट गई तो इसको मैंने हटा दिया यहां से. जैसे ही ऐसा हुआ आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला p इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट. तो p क्या है 3, p के नेक्स्ट में क्या है 5, तो ये p भी इंक्रीमेंट होके कहाँ आ गया, इस वाली नोड पे आ गया. तो यहां से मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ. तो p भी इंक्रीमेंट हो गया. अब जब ये हो गया, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट. अब जब करंट डॉट नेक्स्ट पे ये जाएगा तो करंट डॉट नेक्स्ट में क्या थी वैल्यू, नन थी. सो c विल नाउ बी इक्वल टू नन. लूप में चेक हो गया कि करंट नन के बराबर हो गया है, नन के बराबर हो गया है, लूप से आप बाहर आ जाइए. जब आप लूप से बाहर आ जाओगे, व्हाट दे आर सेइंग इज देयर इज अनदर 2 स्टेटमेंट रिटन ओवर हियर. पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्यू के नेक्स्ट में आप नन कर दो. सो वेयर इज क्यू, नाउ सी इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड, सो वी कैन रिमूव सी फ्रॉम हियर. क्यू का नेक्स्ट कहाँ है, क्यू है ये, इसके नेक्स्ट में नन कर दो. अभी इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में 5 का एड्रेस है, बट अगर मैं इसके नेक्स्ट में नन कर देती हूं तो ये लिंक खत्म हो जाएगी. वही हमें करना है, ये लिंक को हमें खत्म करना है और इसके नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर नन रख दिया. राइट, अब क्या बोला गया, p के नेक्स्ट में जो p है, p ये है जो 5 वाली नोड को कर रहा है रेफर, इसके नेक्स्ट में क्या है नन है, इधर आप डाल दो temp 2.
अब अगर temp2 डालना है, temp2 है यहाँ पर, राइट? तो इसके नेक्स्ट में यहां से मैंने ये गायब किया और इसके नेक्स्ट में temp2 डाला है, दैट मीन्स यहां से एक रेफरेंस गया होगा इधर पे, राइट? तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। अब जब यहाँ बन गया है तो इन्होंने बोला अब क्या, अगर अब सिंगली लिंक लिस्ट का क्या हालत हुई है जब पूरा कोड चल गया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली शुरू करना है हेड से। आपको जब आप हेड से शुरू करोगे, वेयर इज योर हेड? योर हेड इज ओवर हियर। हेड किसको रेफर कर रहा है? 1 को। सो द फर्स्ट नोड इज 1। 1 किसको रेफर कर रहा है? 3 को। तो हमारी सेकेंड नोड है 3। 3 किसको रेफर कर रहा है? 5 को। तो हमारे पास है 5। 5 किसको रेफर कर रहा है? 2 को। तो हमारे पास है 2। और 2 किसको रेफर कर रहा है? 4 को। यहाँ पर है 4 और 4 के आगे क्या है? नन। तो यहाँ हमारी लिंक लिस्ट हो गई खत्म। तो इसने सिंगली लिंक लिस्ट में क्या हुआ? सिंगली लिंक लिस्ट में ये चेंज हुआ कि अब उसकी नोड्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई है, विच इज ऑप्शन बी। So is it clear to everyone? Quickly write yes or clear in the chat box. Yes, ma'am, it's clear. We can proceed to the next question. Okay. Again, a very small one. Give me the answer for this. Okay, so students start replying and they are saying A is the answer. Okay, so linked list में usually whenever you have a traversal question, the answer in 60% cases will be N, and you have to read the question and then solve it. So first of all, let's read how much time will it take to retrieve the kth element from the end in a given linear linked list of n nodes. तो आपके पास अगर कोई linked list है, let's say again I'm going to take 10, 20, 30, 40, here it is none, and this is your head. तो अगर आपको kth element from the last चाहिए, that means if k value is 1, I probably want to print 40, and if k value is 2, then I want 30. Similarly, if k value is 3, then I want to print 20, and if k value is 4, I want to print 10 from backwards. तो पहले वाले केस में आपको ट्रैवर्स करना है लास्ट तक, so you have to traverse say 1, 2 and 3 times. Length of the linked list is 4, so I can say n minus 1 times आपको लूप चलाना है, राइट? लिंक लिस्ट 4 लेंथ की है, लेकिन आपको अगर आप हेड से शुरू कर रहे हो तो 3 बार में आप स्किप करके पहुंच जाओगे। इन दिस केस आप 2 बार में स्किप करके पहुंच जाओगे, राइट? And in this case you can say in one time you can, in one skip you can reach to this node, that is 4 minus 3 and so on. So whatever happens, this 1, 2 and 3 is going to be fixed. कोई k वैल्यू होगी आपकी, बट व्हाट हैपेंस हियर इज कि अगर आपको ये करना है तो आपके पास हमेशा k वैल्यू ये नहीं रहेगी। आप जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो, आप बेस्ट या वर्स्ट बताते हो। अगर आपसे पूछा जाता बेस्ट केस में आपको कितना चलना है, तो बेस्ट केस में आप बोलते हो हमें कुछ नहीं चलना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ 1, जब n बराबर k होगा, मतलब हमको यही वैल्यू चाहिए। बट जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दे आर ट्राइंग टू आस्क यू द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या होगा? आपको पूरा लूप चलाना पड़ेगा टिल दी एंड। जब आपको ये करना पड़ेगा, सो यू कैन से बिग O ऑफ n will be your answer, because n nodes का आपको वैल्यू नहीं पता होगा, that also you will have to find out, right? So is this clear to everyone? We'll move to the next then. This was a very easy question. So students, clear to everyone? Please write a quick yes. Only few students reply frequently. The rest of the students, please reply. Is it clear to everyone? Yes, ma'am, it's clear. Ma'am, can we take a pause here for the attendance? Okay, ma'am. Okay, so students, quickly write your attendance in the chat box. I'll give you a minute to write your attendance in the chat box. Quickly write your roll numbers.
Yes, ma'am, it's done. Now you can proceed with the solution. Okay, let me know the answers for this one if you've attempted this. Okay, so students are saying B is the answer. Okay, so we'll just read this question. Consider the following statements about a doubly linked list having at least 3 nodes. तो आपको at least 3 nodes से ज़्यादा ही लेना है. We'll take around 5. So the forward linkage of one of its node instead of pointing to the next node is pointing to the last node. So let's take a linked list. Let's say 1, 2, 3, or I'll just make it over here 1, 2, 3, 4 and 5. इसमें कहा गया है कि कोई एक नोड ऐसी है जो फॉल्टी है, वो नेक्स्ट को पॉइंट करने के बजाय लास्ट को पॉइंट कर रही है. सो लेट्स से कि ये थर्ड वाली नोड है, ये लास्ट वाली को रेफर कर रही है, ये मेरी फॉल्टी नोड है. फॉरवर्ड लिंक ऑफ द लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू द फॉल्टी नोड. तो यहां से भी एक ऐसे गया हुआ है. इसके बाद बोला गया है फॉरवर्ड लिंक ऑफ द फर्स्ट इज पॉइंटिंग टू द फॉल्टी. सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. इतना गिवन है, ये मेरा हेड होगा. 1 का फॉरवर्ड 3 पर है, 2 का फॉरवर्ड भी 3 पर ही होगा, 3 का फॉरवर्ड 5 पर है, 4 का फॉरवर्ड भी 5 पर होगा. आइडियली डबली लिंक लिस्ट में 5 का नेक्स्ट में नन होना चाहिए, बट यहां पर नहीं है. अब डबली लिंक लिस्ट में प्रीवियस लिंक्स भी होती हैं, तो आपने बोला 5 का प्रीवियस 4 पर ही होगा, ये इसका नेक्स्ट वाला है जो 3 पे गया है. 4 का प्रीवियस कहाँ होगा? 3 पर होगा. 3 का प्रीवियस 2 पर होगा और 2 का प्रीवियस 1 पर होगा. राइट, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अज्यूमिंग P इज रेफरिंग टू द फॉल्टी नोड. अब मैंने बोला है जो P है वो मेरा रेफर कर रहा है फॉल्टी नोड को. सो दिस इज योर P. Following code prints every element of the list in any order, fill in the blanks. अब आपको इस पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 को प्रिंट करना है, कैसे भी करना है, बट आपको फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया जा चुका है, द ओनली ऑप्शन इज टू सब्स्टिट्यूट एंड देन फाइंड द करेक्ट आंसर. सो लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट ए ऑप्शन. ए ऑप्शन में आपको बोला गया Q इज इक्वल टू P. यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ एक लूप चल रहा है Q का यूज करके, और Q की को आप प्रिंट कर रहे हो. अगर मैं Q को इनिशियलाइज कर देती हूँ P से और Q को इंक्रीमेंट करती जाऊं, तो बेसिकली Q यहां पर होगा, और जब तक ये नन नहीं हो जाता आपको इसकी की प्रिंट करनी है. तो Q की प्रिंट होगी 3. 3 के बाद ये इंक्रीमेंट होके अपने नेक्स्ट पे जाएगा. इसके नेक्स्ट में क्या है, सो नेक्स्ट में 5 है, तो Q यहाँ आ जाएगा, फिर ये 5 प्रिंट करेगा. फिर इसके नेक्स्ट में क्या है, Q के नेक्स्ट में फिर से 3 है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये इनफिनाइट टाइम्स 3 5 3 5 प्रिंट करता रहेगा. तो ये तो हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका गलत है. राइट, सो दिस यू डोंट वांट. सो दिस इज गोइंग टू गो इनटू एन इनफिनाइट लूप. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. नेक्स्ट वाले में Q इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट. तो Q को आपने बोला P डॉट नेक्स्ट. P है आपका 3, इसके नेक्स्ट में है 5, तो आपने बोला Q को यहां कर दो और यहां से लूप चलाओ. यहां से लूप चलाओ, की प्रिंट करो, तो 5 प्रिंट हो गया, लेकिन इसको इंक्रीमेंट Q डॉट नेक्स्ट से ही करना है. तो अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो Q वापस से 3 पे आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये अगेन 5 3 5 3 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट करता रहेगा, विच इज ऑल्सो नॉट योर करेक्ट आंसर. लेट्स पुट B. Q इज इक्वल टू P का नेक्स्ट. ठीक है, Q इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, हम यहाँ 5 पर हैं, और अब हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, अब हम डिक्रीमेंट करेंगे, हम बैकवर्ड चलेंगे. तो यहां जैसे आप देखोगे, आप बैकवर्ड चलोगे तो आपने Q को प्रिंट किया 5, क्योंकि प्रीवियस में क्या है 4, तो अब ये Q यहां पर आ गया, फिर ये 4 प्रिंट करेगा, और क्योंकि सारी बैकवर्ड लिंक्स अप्रोप्रिएटली लगी हुई हैं, तो Q जब भी डिक्रीमेंट होगा तो 4 के बाद वो 3 पे आएगा, 3 के बाद 2 पे, और 2 के बाद 1 पे. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है. टू बी मोर श्योर, लेट्स ऑल्सो चेक ऑप्शन डी. डी क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट. तो P कहाँ है आपका 3 पर, और P डॉट नेक्स्ट मतलब 3 के नेक्स्ट में 5 और 5 के नेक्स्ट में वापस से 3, तो यहीं से शुरू करो, विच मेक्स नो सेंस अगेन, बिकॉज ये यहां से जब आप डालोगे लूप के अंदर तो 3 प्रिंट होगा, और यहां से अगर आप प्रीवियस पे जाओगे तो 2 प्रिंट होगा, 1 होगा, और कुछ नहीं होगा. तो हमें पूरी लिंक लिस्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ इतनी मिलेगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इज इट क्लियर?
So it is clear to everyone? Students, please reply. It is clear to everyone. So yes, ma'am, it's clear. We can proceed to the next question. Okay, so this is the simplest question in the sheet. What is the answer? A theoretical one. Quickly write. So 2 or 3 students says C and rest of the students till now says A. Remaining students, please quickly write A, B, C or D. So it's a combination of A and C. Okay, so this is a very simple question. ये अगर आपका concepts clear है और आपको algorithms याद है, so this is very easy. They are asking the complexity of insertion operation at the beginning. तो अगर आपके पास array given है, array में आपको at the beginning insertion करना है. कोई एक array है आपका और उसमें let's say ये 1, 2, 3, 4 elements हैं. अब मुझे यहाँ पर ही इंसर्ट करना है तो कायदे से मुझे 4 को आगे शिफ्ट करना है, 3 को आगे, फिर 2 को आगे, फिर 1 को आगे. तो अगर मुझे बिगनिंग में इंसर्ट करना होता था तो मुझे जितने एलिमेंट्स हैं, अगर n एलिमेंट्स हैं, उन n एलिमेंट्स को शिफ्ट करना रहता था आगे. तो इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी ऑर्डर ऑफ n. सिंपल लिंक लिस्ट में अगर आपको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिंपली लिंक्स चेंज करनी है. डबली लिंक लिस्ट में भी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा. सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा? सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्शन जब आप एट द फ्रंट करोगे तब उस केस में अगर लेट्स से 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास है और आपको एक 40 यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट करने की जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो ऑर्डर ऑफ 1 है. बट यहाँ पर एक चीज होती है कि लास्ट नोड फर्स्ट को रेफर कर रहा होता है, तो लास्ट नोड पे जाके 4 पे जाके आपको ये रेफरेंस हटा के 40 का रेफरेंस डालना पड़ेगा और ये करने के लिए आपको लूप के अंदर जाना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पर भी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n. डबली सर्कुलर में सारे ही ऑपरेशंस इंसर्शन के एट द एंड हो, बिगनिंग हो या डिलीशन एट द एंड, बिगनिंग हो, सब ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है. तो इस लिहाज से अगर आप आंसर देखोगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन मैम. Yes, ma'am, you can move to the next one. ओके, इसका आंसर बताओ. So students, please write the answer. Again, few are saying C and rest of the students are saying A. Ma'am, we get a mixed sort of answers between A and C. So you can proceed with the solution. Okay, what does the code do for a singly linked list of n nodes? Okay, we are not going to make n nodes, but we will make, let's say 5 nodes. 1, 2, 3, 4, and 5, and this will have none at the end, and this will be your head. You have been given one pointer, not tail. अब आपके पास कोई not tail pointer है which holds the address of a node, जो कि last node नहीं है. तो let's say मैंने इसको मान लिया not tail. ठीक है, ये last node नहीं है तो इसको आपने not tail मान लिया. क्या बोला गया है इसमें? current node is equal to not tail का next. not tail के next में क्या है? 4. तो ये हो गया आपका current node. अब बोला गया नॉट टेल की की में आप डाल दो करंट नोड की की. नॉट टेल की की है 3 की जगह आप डाल दो करंट नोड की दैट इज 4. ये डाल दिया आपने. अब क्या बोला गया? नॉट टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट. नॉट टेल अभी कहाँ है? इस नोड पे है जिसके पास है की 4. इसके नेक्स्ट में है ये वाला नोड जिसके पास भी की है 4. बट अब बोला जा रहा है ये रेफरेंस आप तोड़ दीजिए और इसके नेक्स्ट में आप क्या डालिए? करंट नोड का नेक्स्ट जो कि है 5. ये आपने कर दिया तो ये रेफरेंस यहां से हो गया गायब. ये जब आपने किया तो क्या बोला गया? करंट नोड इज इक्वल टू नन. करंट नोड भी आपने यहां से रेफरेंस हटा दिया एंड करंट नोड इज अगेन इक्वल टू नन. सो नाउ इफ यू सी योर लिंक लिस्ट, बेसिकली अब आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, इसमें हुआ क्या? एक तो इसमें पहली चीज है डिलीट हुआ कोई की. डिलीट्स द की इज रिटन इन ऑल द 4 ऑप्शंस. तो की डिलीट हुई है.
किसकी की डिलीट हुई है और कितने टाइम में हुई है। तो टाइम अगर आप देखो तो यहाँ से कोई लूप तो चला नहीं, तो ये टाइम जितना भी लगा ऑर्डर ऑफ 1 लगा। इस लिहाज से ऑप्शन डी और ऑप्शन बी गलत हो जाते हैं। अब हुआ क्या, हेड ऑफ द लिंक लिस्ट में है 1, 1 के नेक्स्ट में है 2, 2 के नेक्स्ट में है 4 और 4 के नेक्स्ट में है 5। अगर आप लिंक लिस्ट की बात करो, यहाँ इसके नेक्स्ट में है नन, एक और कहीं नोट पड़ी हुई है रैंडमली जो 4 है, ये वाली मैं बात कर रही हूँ, जो भी 5 को रेफर कर रही है, बट इट इज नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लिंक लिस्ट, सो वी कैन इग्नोर इट। सो दिस इज माई लिंक लिस्ट। मेरा नॉट टेल कहाँ है, मेरा नॉट टेल यहाँ पर है। हुआ क्या इसमें से डिलीट, इसमें से 3 डिलीट हुआ। 3 क्या था, की वैल्यू था। किसका की वैल्यू था, नॉट टेल का की वैल्यू था, राइट। तो यहां पर आपकी डिलीट हुई की ऑफ नॉट टेल in order of 1. So option A is your correct answer. This is one of the most confusing patterns of InfyTQ. So this happens, but you have to understand कि ये execute होने के बाद इस टाइप का आउटपुट बना लो। ऐसी लिंक लिस्ट क्या बची, उसमें क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन अपना मार्क कर दो। Is it clear to everyone? So write quickly a yes or clear. It is clear to everyone. Yes, ma'am, it's clear. Okay. ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आउटपुट बता दो। फटाफट से बताइए क्या आउटपुट है इसका। Quickly write your option. So ma'am, students are saying C and 2 to 4 students are saying D also. Let's move to the solution. Okay, so this is a big code given. You have a linked list given, and because this is the last question, linked list is given in order. So you can not draw the diagram and you can directly do it. But because we are in class, so I'm going to draw this over here a little bigger in font size. So you have these nodes over here, 50, 60 and 70. ये आपका हेड है, और यहाँ पर हेड ने इन्होंने लिस्ट यूज किया है, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक लिस्ट, राइट। सो इस फंक्शन में लिस्ट पास हुआ। इफ नॉट लिस्ट, नॉट लिस्ट मतलब लिस्ट में अगर कोई वैल्यू है, अब पाइथन अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होता है, अगर लिस्ट में नन होता, नन मीन्स बुलियन वैल्यू फॉल्स, राइट। अगर लिस्ट वॉज इक्वल टू नन तो बुलियन वैल्यू इसकी होती फॉल्स, और अगर मैंने लिख दिया है नॉट फॉल्स दैट मीन्स वो हो जाता ट्रू। तो इफ कंडीशन अगर ट्रू होती तो आप रिटर्न कर जाते। ये बस सिंपल सा ये कहना चाहता है कि अगर लिंक लिस्ट खाली है या लिंक लिस्ट के नेक्स्ट में, फर्स्ट वाली नोड के नेक्स्ट में ही नल है, यानी अगर लिंक लिस्ट खाली है या एक ही नोड है तो वापस चले जाओ। तो यही कहने का मतलब है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई, तो ये तो होने नहीं वाला, ये हटा दो। P इज इक्वल टू लिस्ट, तो आपका P पॉइंटर यहां पर आ गया। Q इज इक्वल टू लिस्ट डॉट नेक्स्ट, तो Q पॉइंटर यहां पर आ गया। अब जब तक Q, वाइल Q का मतलब क्या होता है, जब तक Q में नन ना आ जाए, तो जब तक Q में कोई भी वैल्यू है आपका लूप चलेगा। अब यहाँ देखो ये स्वैपिंग जैसा कुछ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये स्वैपिंग जैसा कुछ है, इसमें प्लस माइनस का 10 कुछ कर रखा है इन्होंने। तो टेम्प ले लिया मैंने, टेम्प के अंदर डाल दो P की विच इज 10, P की में डाल दो Q का की माइनस 10, Q की क्या है 20, 20 माइनस 10 कितना होगा, 10 ही हो जाएगा वापस से। और Q की में डाल दो टेम्प का प्लस 10, 20 की जगह डाल दो टेम्प प्लस 10, यानी 10 प्लस 10 अगेन 20। तो कुछ तो स्वैपिंग हुई, बट प्लस माइनस 10 की वजह से वैल्यू सेम आ गई। अब क्या बोल रहे हैं ये, इसके बाद P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, तो P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, P इंक्रीमेंट होके यहां पर आया। क्या P और Q बराबर है, इफ कंडीशन में चेक हुआ, हाँ बराबर है, तो आपने Q को भी इंक्रीमेंट कर दिया एक आगे, Q इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग चीज है ये, जो ये इन्होंने P इंक्रीमेंट करा है और फिर उसके बाद ये Q इंक्रीमेंट करा है, ये बिना इफ कंडीशन के डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट और Q इज इक्वल टू Q का नेक्स्ट, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा MCQ में टाइम बाउंड होता है, तो कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप मिस्टेक करो, ये चीज की गई है। तो ये हो गया। अब आपका क्या है, P यहाँ से हट गया है और Q यहाँ से हट गया है, फिर से सेम चीज होगी, आपका लूप चलेगा, लूप चलेगा। अब टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी, P की। अब 20 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 30, 30 की जगह, सॉरी 20 की जगह क्या आ जाएगा 30 माइनस 10 यानी 20, और यहाँ पे भी आ जाएगा
30। मतलब कीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 10 + 10 20 + 10 30 होता है, 30 यहाँ पर आ गया, और 30 - 10 20 होता है, 20 यहाँ पर आ गया। कीज में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में कुछ हो। तो इस केस में पूरा लूप एग्जीक्यूट करने की बजाय आप यहां से मूव करके कहाँ जा सकते हो, यहाँ और यहाँ। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जब P और Q, मैंने बीच की वैल्यूज यहाँ पे ये स्किप करी है बिकॉज इट इज एन MCQ एंड अ पैटर्न हैज बीन रीच, ये पैटर्न कुछ चल रहा होगा। तो अब क्योंकि हमारा कंफ्यूजन ये लास्ट वाली वैल्यूज में ही है, तो यहाँ भी देख लेते हैं, जब P यहाँ है और Q यहाँ है, तो आप लूप के अंदर गए, लूप के अंदर आपने क्या बोला, टेम्प के अंदर डाल दो P का की क्या है 60, ठीक है। P के की में डाल दो Q का की -10, Q का की है 70, 70 - 10 60 यहाँ आ गया, और Q के की में डाल दो टेम्प + 10, तो Q के की में क्या आ गया 60 + 10 यानी 70। सेम चीज हुई, P इंक्रीमेंट हुआ, P इंक्रीमेंट होके कहाँ आ गया, इधर आ गया, P और Q बराबर हो गए, तो Q = P का नेक्स्ट। अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पर क्या होगा, 70 के नेक्स्ट में तो नन होगा, तो Q जब इंक्रीमेंट हुआ तो Q हो गया अब आपका नन। जब ऐसा हुआ तो आप फिर वाइल लूप के अंदर गए, वाइल लूप के अंदर आपने चेक किया वाइल Q, और मैंने क्या बताया था, इसकी बुलियन वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। तो वाइल Q जैसे चेक होगा, इसकी बुलियन वैल्यू है फॉल्स, ये आ जाएगा लूप के बाहर। लूप के बाहर आके क्या बोला गया है, रिटर्न लिस्ट, तो लिस्ट आपकी एज इट इज रही, कोई चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन सी। So this is a classic example of a question which is big in size, having a big linked list in size, having multiple options, and you might think कि इसमें time लगेगा, आप इसे छोड़ दो, but you observe that nothing is happening inside and there is no change in the linked list. It was the easiest question. So option C is your correct answer. So that's all for today's sheet, and I hope कोई doubt नहीं होगा. That's all from my side, ma'am. Okay, students, so in case of any doubt, you can write your doubt in the chat box.